Hello, 9th standard students. ड्राइंग लेक्चर प्रैक्टिकल हो गया। अब थियरी आर्ट बुक निकालिए। टेक आउट योर आर्ट बुक। पेज नंबर 53 पर आइए। चैप्टर 3 टाइप्स ऑफ डिज़ाइन यूजेस एंड देयर प्रिंसिपल्स। ये मैंने समझा दिया है वैसे, यहाँ से यहाँ तक समझा। फिर से याद ताज़ा कर लीजिए। डिज़ाइन कितनी तरह के होते हैं, उसका इस्तेमाल और एंड प्रिंसिपल्स के बारे में। डिज़ाइन मीन्स स्टाइलिश आर्ट। डिज़ाइन का मतलब स्टाइलिश आर्ट है। डिज़ाइन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पिक्चर। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज डेकोरेशन और ऑर्नामेंटेशन। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज डेकोरेशन or ornamentation. Ever since the primitive days, human has had the inclination as well as the acumen to decorate attractively articles that he uses. It is clear from the clay utensils found at Mohenjo-daro as well as the articles and utensils belonging to the Harappan civilization. पहले के ज़माने में भी ये आर्ट था। मोहनजोदड़ो में जो कुछ शिल्प या बांधकाम ये सब मिल रहा है, उसमें इसका प्रमाण दिखता है। It is clear from the clay utensils found at Mohenjo-daro as well as the articles and utensils belonging to the Harappan civilization. हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी मिट्टी के घड़े वगैरह सब बर्तन मिले हैं खोद काम के जरिए। तो उससे पता चला that ages ago men had the understanding and the know-how of decorating and beautifying articles that he used. We find that in our country small and large objects like small combs, swings, chests, nutcrackers, utensils of clay and metals, pegs into walls, door frames, windows, balconies, etc. Every one of these articles and places was decorated with various types of design. तो इस तरह से हम अब पहले के ज़माने में ये ऐसे तो डेकोरेट करते थे ऐसी चीज़ों से अलग अलग ये, और अभी भी हम करते थे। अभी हमारी और भी उन्नति विकास हुआ है, हम कुछ और आधुनिकतम चीज़ें बनाने लगे हैं। पहले तो कलर वलर कुछ पोस्टर कलर था नहीं, वो कुछ पौधों के क्या कलर, पत्ते पीस कर या फल का रस निकाल कर हम जंगली फल का रस, ये इस तरह से कलर मतलब ये करते थे, तैयार करते थे। प्लास्टिक की चीज़ भी तब नहीं थी। प्लास्टिक वो एक इंसान ने बनाई हुई वो एक केमिकल सब्सटेंस है वो। Even today's saris, curtains, table lamps, photo frames and other objects fascinate us with their shapes and design. Shapes created by nature like fruits, flowers, creepers, leaves, trees, feathers has also various kind of animals, shells, butterflies, etc. are used in creative design. ये सारी हमने क्रिएटिव डिज़ाइन देखा है, इन सब चीज़ों को रखते हैं। इन लोग का इन सब चीज़ों का संयोजन करके हम बनाते हैं। Beside this, geometrical shapes like triangles, squares, hexagons, circles, etc. are also used in making designs. ये कुछ geometrical shape भी हम डिज़ाइन में इस्तेमाल करते हैं।
यूज में लेते हैं. In recent times, the use of abstract shapes has been increasing in preparing design. आजकल abstract design बहुत ज़्यादा चल रहा है. मतलब वो कुछ अनियमित आकार, नियम से नहीं, कोई अलग सा शेप, तो वो उस डिज़ाइन को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट. अभी आगे हम देखेंगे. अब वैसे पता है हमें, ये चल गया है ऐसे. टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस. द वेरियस टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस आर एज फॉलोज. नंबर 1, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस. Decoration which is done by drawing shapes like circle, triangles, squares, hexagons, etc. with the help of geometrical instruments is called designing. These shapes are extensively used in woolens and cotton carpets and in woolen textiles. Besides this, such designs are also used in nets, garden gates and wooden balustrades. ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन बहुत छोटे से उपयोग होता है वुलन और कॉटन कारपेट पे, वुलन टेक्सटाइल्स वगैरह में. ये ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन कुछ लकड़ी के ऊपर नक्काशी में भी ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन मतलब इस्तेमाल करते हैं. गार्डन गेट्स में, नेट्स में भी. Number 2, natural design. Decoration which is done by drawing various elements of nature is called designing with shapes created by nature. This type of designing makes use of shapes like those of flowers, leaves, fruits, creepers, animals and birds, butterflies, feathers, shells, etc. नेचुरल डिज़ाइन मतलब कि कुदरत की बनाई चीज़ों की जो डिज़ाइन उससे तैयार करते, जैसे कि फूल, पौधे, पत्ते, बेल, फल, क्रीपर्स, एनिमल्स, बर्ड्स, बटरफ्लाइज, शेल्स, etc. This type of designing is not limited to the use of light and shade. These shapes are used more extensively in embroidery. और ये डिज़ाइन नेचुरल डिज़ाइन जो है, एम्ब्रॉयडरी वर्क, जो कढ़ाई काम, जो भरत काम बोलते गुजराती में, कढ़ाई काम हिंदी में, एम्ब्रॉयडरी वर्क, उसमें ये डिज़ाइन ज़्यादा यूज होता है. ये ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन में देखिए ये टाइप के हम बना चुके हैं. नेचुरल डिज़ाइन में देखिए ये सब फूल, पत्ते वगैरह जो है वो. Number 3, decorative design. A design in which new decorative shapes created by making changes in the natural shapes of flowers, leaves, creepers, fruits, animals and birds, butterflies, etc. are used is called design with ornamental shapes. In this type of design, ornamental shapes are arranged inside various shapes. Such shapes are especially used in rangolis, when painting and designing in colored powders, and in freehand drawing. डेकोरेटिव डिज़ाइन मतलब हम फ्री हैंड में जो करते हैं वो फ्री हैंड ड्रॉ करते हैं ना, रंगोली में भरते हैं वो. वही ये जैसे कि ये बर्ड्स, बटरफ्लाइज, क्रीपर्स, फ्रूट्स कुछ अलग अंदाज से पेश करके ने फिर हम जो ये डेकोरेशन के लिए तैयार करते जो डिज़ाइन, वो डेकोरेटिव डिज़ाइन. जैसे रंगोली में साथिया पुरते हैं दिवाली के टाइम पे आंगन में वो डेकोरेट. ना अबाउट नंबर 4, टर्न योर पेज नंबर 54 पर आइए. नंबर 4, abstract design. A design which does not have a direct or indirect relation with geometrical, natural or ornamental shapes, and in which original shapes are used, which are symbolic, is used design with abstract shapes. This type of design is used extensively in saris, curtains, printed cloth, chinaware, glazed tiles, ready-made गारमेंट्स एक्सेट्रा. एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन ये देखिए कुछ नियम के बाहर कुछ ऐसा ये कोई परफेक्ट कोई शेप नहीं है, अनियमित सा है कुछ लगता है ना.
तो ये बार बार दोहराया गया है वैसे। तो ट्रेस्ड एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स, देखिए ट्रेस किया, एक को बना लिया, उसको थोड़ी दूरी पर उसी को ट्रेस किया, फिर उसी ऐसे थोड़े थोड़े अंतर में, तो इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन। और यहाँ पे है एक ही एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन एक बॉक्स के अंदर बताया है, बस अलग अलग नहीं है, बस एक ही कहते हैं मनगढ़ंत अनियमित सा शेप। तो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म इन होल पार्ट, पूरे में एक ही मतलब एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है। ओके, यहाँ तक चल चुका था, मैंने फिर से समझा दिया ना। बट प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइनिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइनिंग के बारे में जानें। डिज़ाइंस आर यूज्ड टू मेक ऑब्जेक्ट्स मोर ब्यूटीफुल बाय डेकोरेटिंग दैम। किसी ऑब्जेक्ट को और भी अच्छा, खूबसूरत, श्रृंगार युक्त ऐसा कुछ बनाने के लिए हम डिज़ाइन ये करते हैं, बराबर, उसमें डिज़ाइन भरते हैं। इन इट वन और मोर शेप्स आर एस्थेटिकली अरेंज। एक से ज़्यादा बार दोहराया जा सकता है। इफ़ द अरेंजमेंट इज विदाउट प्रॉपर बैलेंस और unorganized, the design does not turn out to be beautiful. The color scheme is also important in designing. Besides proper arrangement of shapes, because of the empty space of design, the shapes of design look more clear and attractive. There are three main principles of designing. Number one, repetition, radiation, and balance. Number three, balance. सिद्धांत। कोई भी खाली जगह पे अगर डिज़ाइन भर दिया जाए तो उससे वो जगह और भी अट्रैक्टिव लगता है कि नहीं। ये फिर वो जो स्पेस, खाली स्पेस था, उसकी एक वैल्यू रहती है कि भाई ये खाली तो नहीं है, और बैलेंस रख के बनाना पड़ता है। तो there are three main principles of designing: repetition, radiation, and balance. Number one, repetition. In the same shape is used two or more times in a design, it is called repetition. एक से बार बार एक ही डिज़ाइन को, इमेज को दोहराया जाता है तो उसे एक या अलग अलग, तो उसे कहते हैं रिपीटेशन। Repetition may be done in 4 different ways. Accordingly, there are 4 types of repetition as described below. 4 तरह के रिपीटेशन है जिसके बारे में नीचे दिया गया है। नंबर वन सिंपल रिपीटेशन। अब सिंपल रिपीटेशन के बारे में जानें। इन दिस काइंड ऑफ रिपीटेशन द शेप सिलेक्टेड फॉर द डिज़ाइन इज एंड नियर इच अदर मोर देन वंस। ठीक है, ये लोटस सा है, बार बार दोहराया गया है, एक के बाद एक हो गया, उसके बाद फिर से वही, फिर वही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, है कि नहीं। तो ये है सिंपल रिपीटेशन, इसको बोलेंगे सिंपल रिपीटेशन। नंबर टू, काउंटर चेंज रिपीटेशन। In this kind of repetition, the shape selected for the design is placed one straight and near it in the reverse, means bottom of position. देखिए यहाँ लोटस है, एक सीधा है, सीधे डायरेक्शन में, एक ऊंधा, फिर तीसरी बार में सीधा, फिर उसके बाद, तो इसे कहते हैं काउंटर चेंज। काउंटर चेंज हुआ है यहाँ पे, काउंटर चेंज रिपीटेशन का एग्जाम्पल ये। Number 3, alternating repetition. In this type of design, the two shapes selected for the design are arranged alternately, either by placing shape number 2 after 1 and again placing number 1 after number 2 and so on. देखिए यहाँ अल्टरनेटिंग रिपीटेशन में क्या होता है, दो तरह की अगर चीज, एक लोटस है तो यहाँ पे फिर फ्लावर आया
तब तीसरे स्टेप में क्या आएगा, लोटस, फिर चौथे स्टेप में तो फिर वो फ्लावर, ऐसे। तो इसे कहते हैं अल्टरनेटिंग रिपीटेशन। नंबर 4, ऑल ओवर रिपीटेशन. In this type of repetition, a shape or more than two shapes selected for the design are distributed equally over the entire space used for the design. In all this repetition, tracing paper means semi-transparent can be used for drawing. ये शर्ट के कपड़े में दिखता है, साड़ी में भी दिखता है, इस तरह का ये ऑल ओवर रिपीटेशन, यानी कि एक या दो चीज़, या फिर समझो एक ही। यहाँ पे देखो ये पत्ता कैसे डेकोरेटिव ढंग से मतलब डिज़ाइन किया है यहाँ पे। ये तो यहाँ पे एक रखा तो जो दूरी थोड़ी दूरी पर वही ट्रेस करके रखा, फिर से तो उतनी ही दूरी पर ये, फिर ये, फिर इस तरह से पूरा भर जाता है उतनी दूरी में ये सब। तो इसे कहते हैं ऑल ओवर रिपीटेशन। ये ऑल ओवर रिपीटेशन का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। रिपीटेशन के बारे में जान गए हम, 4 तरह के रिपीटेशन है ना। बट नंबर 2, रेडिएशन। रेडिएशन के बारे में जानेंगे। रेडिएशन मीन्स द स्प्रेडिंग ऑफ अ सिलेक्टेड शेप, लाइन और कलर इन वन और ऑल द डायरेक्शन इन अ डेफिनेट मैनर. The principle of radiation is exampled by the rising sun or the sunflower or by creepers or branches of trees. The following are the type of radiation. Radiation मतलब एक ही सतह से जो निकलता है, किरणें निकलती है, रेडियो क्या बोलेंगे, मतलब कि किसी डेफिनेट शेप या लाइन या फिर कलर चारों डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में जो फैल जाना, उसे कहते हैं रेडिएशन। जैसे कि सन, फिर क्रीपर्स वगैरह, sunflower or creepers, branches of trees, etc. These are examples of radiation. Number 1, radiation from the point. If lines or colors are released from a point, it is called radiation from a point. एक point पे से अगर वो expand होता है, radiation होता है, तो उसे कहते हैं ये radiation from the point. Example, the spring of a clock. ये रहा clock का, घड़ी का spring. A bunch of bananas, केले का झुमका. A bunch of leaves, a flower, बीच में से निकले सारे पेटल्स, एक ही सेंटर से. A fountain मतलब फुवारा. ये सारे रेडिएशन फ्रॉम द पॉइंट कहलाएंगे. नंबर 2, रेडिएशन फ्रॉम द सेंटर. द अरेंजमेंट इन विच शेप्स आर स्प्रेड around the central point is called radiation from the center. Example, the sun, the sunflower, the spokes of wheel, petals of a flower, etc. सेंटर से जो ये छोटा है किरणों की तरह, जैसे कि ये व्हील है, फिर व्हील के अंदर जो व्हील के अंदर भी वो खास करके जो स्पोक्स होते हैं वो तार होते हैं, साइकिल के व्हील के अंदर या फिर बाइक के. फिर ये सन के किरणें हम ड्रॉ करते इस तरह से. फिर फ्लावर के पेटल्स भी सेंटर से ये स्प्रेड होता है, एक्सपांड होता है. तो ये सारे रेडिएशन फ्रॉम द सेंटर के एग्जाम्पल है. नंबर 3, रेडिएशन फ्रॉम बेस.
When shape spread from the base of a surface, it is called radiation from a base. Example, the tufts of toothbrush, a hair comb, grass on the ground, etc. रेडिएशन फ्रॉम अ बेस मतलब कि एक सतह से तो ये कोई उस पर शेप निकलता है, आकार निकलता है, उसे कहेंगे रेडिएशन फ्रॉम अ बेस. एग्जाम्पल, द टफ्स ऑफ टूथब्रश. ये है टूथब्रश के ये जो ब्रिसल्स. हेयर कॉम, देखिए हेयर कॉम की ये शब्द आती हैं. ग्रास, ये रहे ग्रास ऑन द ग्राउंड एक्सेट्रा. ये रेडिएशन फ्रॉम अ बेस, एक सतह से निकला है, एक सरफेस से. नंबर 4, रेडिएशन फ्रॉम द एक्सिस. अब जानेंगे रेडिएशन फ्रॉम द एक्सिस किसे कहते हैं. इफ शेप्स एक्सपांड्स फ्रॉम टू साइड फ्रॉम अ लाइन और एन एक्सिस, it is called radiation from an axis. Example, the nerves of a leaf, feather of a bird, TV antenna, etc. एक ये if shapes expand from two sides, दो तरह से अगर फैलता है वो शेप, किरणें या शेप जो भी है, तो वो कहलाएंगे रेडिएशन फ्रॉम द एक्सिस. जैसे कि ये पत्ता है, पत्ता के अंदर में पत्ते के एक पत्ते के बीच में एक शिरा जाती है, फिर दोनों तरफ अलग अलग ये वेन्स है ना. तो ये एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है. फिर फेदर ऑफ बर्ड, किसी पंछी का पीछा इस तरह का होता है ना, ये लाइन गई और दोनों तरफ ये उसके रोए. फिर ये टीवी एंटेना, फिर ये एक छोटा सा प्लांट का इस तरफ भी पत्ते हैं, उस तरफ भी, दोनों तरफ. तो ये सारे रेडिएशन फ्रॉम द एक्सिस कहलाएंगे, उदाहरण है उनके रेडिएशन फ्रॉम द एक्सिस के वो एग्जाम्पल. नंबर 5, रेडिएशन फ्रॉम अ लाइन. व्हेन देयर इज अ लाइन, often an imaginary line in the center and lines or shapes radiate from it, it is called radiation from the line. Example, leaves growing on a twig of standing plant, a coat, etc. ये रेडिएशन फ्रॉम अ लाइन के एग्जाम्पल्स हैं. किसी एक लाइन में से फिर वो एक्सपांड होता है. ये ट्रिग ऑफ लीव्स, फ्री हैंड ड्राइंग, कोट. नंबर 6, रेडिएशन फ्रॉम अ कर्व. इफ शेप्स radiate in harmony with one another on a curved line, the radiation is called radiation from a curve. Example, creepers or grills of doors or windows. एक घुमावदार, मतलब घुमावदार रेखा में से कुछ एक शेप जो निकालते हैं, कर्व. रेडिएशन फ्रॉम अ कर्व. इफ शेप्स रेडिएट इन हार्मनी with one another on a curved line, the radiation is called radiation from a curve. Example, creepers or grills of doors or windows. तो ये बैंट्री है, तितली है, पीकॉक है, ड्राइंग विथ कर्व्ड लाइन्स है. डोर या विंडो के जो ग्रिल्स होते हैं लोहे के, वो भी कैसे हम अलग मतलब घुमावदार कर्व्ड लाइन से होता है कि नहीं. कभी कभी हम तो बिल्कुल सीधा ये भी रखते ग्रिल, बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन ज़्यादातर कुछ मोड़ वाला रखते ग्रिल. ठीक है. तो ये सारे रेडिएशन फ्रॉम अ कर्व के एग्जाम्पल है. नंबर 3, बैलेंस. बैलेंस मीन्स इक्वल वेट. इक्वल वेट
यानी कि वो बैलेंस, संतुलन बराबर रहे वो। इफ अ फिक्स्ड weight is kept on one side of the weighing machine, then equal weight has to be kept on the other side. Then only the scale will be stay in center, which is called as balance. तराजू में एक पल्ले में जितना वजन रखा है, वजन का बाट रखा है, उतना ही सामने उतनी चीज भारी उतना ही वजन वाला चीज़ रखेंगे तो ही वो ऊपर का कांटा बिल सेंटर पे बताएगा कि हाँ भाई अब बराबर है, दोनों तरफ बैलेंस बराबर है। Balance means equal weight. If a fixed weight is kept on one side of the weighing machine, then equal weight has to be kept on the other side. Then only the scale will stay in center, which is called as balance. Balance is an important feature of any two type of construction. There are mainly two types of balance. दो तरह के बैलेंस तो उसके बारे में यहाँ पे दिया है। नंबर 1 डायरेक्ट और इक्वल बैलेंस, डायरेक्ट या फिर इक्वल बैलेंस। द बैलेंस इन विच शेप्स आर अरेंज्ड इक्वली ऑन बोथ साइड्स ऑफ द नेट सेंट्रल लाइन और एन एक्सिस इज कॉल्ड इक्वल बैलेंस। Example, leaves growing symmetrically on both sides of a twig or branch. The Taj Mahal, बीच में अगर खड़ी लाइन ड्रॉ कर दो ताजमहल के, एक तरफ जैसा है बाएं तरफ जैसा है, दाएं तरफ भी वैसा ही ड्रॉ करना पड़ेगा, है भी ताजमहल वैसा है। अ बकेट, अ कोट का भी एक हमारा हाथ छोटा बड़ा तो होता नहीं है, दोनों हाथ बराबर होते। कहाँ गया कोट, ये रहा। अ सोल्जर स्टैंडिंग इन अटेंशन, एक सोल्जर अगर खड़ा है बिल्कुल अटेंशन मोड में, सावधान पोजीशन में, तो उसको भी एक तरफ जैसा है दूसरी तरफ वैसा ही आएगा। तो ये इक्वल बैलेंस के एग्जाम्पल्स है। एक्सेट्रा इक्वल बैलेंस इज सीन इन दिस शेप्स। नंबर टू indirect or unequal balance. Even if shapes are not equally on both sides of a central line or an axis and the balance is still maintained, then the balance is called unequal or indirect balance. Example, a tree whose trunk is bent on one side while branches are bent on the opposite side. A rhythmic dancer, a peacock, a kettle, etc. and unequal balance is found in this shapes. unequal यानी कि बिल्कुल असंतुलित वाला, तो किटली है, किटली का एक तरफ वो उसका वो ये रहता है भाई जिससे कि चाय निकले, लेकिन दूसरी तरफ है नहीं, दूसरी तरफ नहीं होता। मोर, पीकॉक का दोनों तरफ ये देखो, यू पे बीच में अगर लाइन ड्रॉ कर लो तो एक तरफ उसका उसकी गर्दन आएगी और दूसरी तरफ साइड पोर्शन से देखो तो यूँ। फिर क्या था, रिदमिक डांसर, कुछ अलग अंदाज से डांस करना है, जैसे कोई डिस्को डांस करे तो वो। ये सारे अनइक्वल बैलेंस के एग्जाम्पल। तो ये बच्चों बस पूरा हुआ, सब कुछ थियरी के जितने भी लेसन से बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं। ये तो इतना पहले मैंने थोड़ा 1.5 पेज फिर से मैंने याद ताज़ा करने के लिए एक्सप्लेन किया, तो ये आपको थियरी बुक में लिखना है। ओके, चलो बाय चिल्ड्रन, फिर मिलेंगे। जो कुछ भी वर्क हो वो मुझे सेंड करते रहिए, समय समय पर ज़रूर करें, एग्ज़ाम करीब आ रहा है।